start with today's last topic. Promotion mix, last P, and these are the elements of promotion mix. We will study these things: advertisement, public selling, personal selling, sorry, and this one, sales promotion techniques. जितनी आप देखते हैं बाजार में, different techniques of sales promotion, Diwali offer, this offer, that offer, 50% free with this, buy two get one free, scratch this, that. All these are known as sales promotion techniques. Discounts, rebates, lucky draw. Then there is publicity. You publicize your product through different media. पहला वाला तो आपको पता ही है, एडवर्टीजमेंट. सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट या डिसएडवांटेजेस, एंड criticism of advertisement. Advertisement is criticized by some of the philosophers, some of the thinkers also. Why? We will study about it. Promotion is a technique to create awareness among the potential customer about the product and convince them that the utilities and benefits of the product would satisfy their needs and wants. A company may produce excellent quality product at most competitive price and make it available at all strategic point of sale, but it fails to communicate with its target customers, the product may not sell well in the market because it has not been communicated properly. कई बार आपको बहुत बाद में पता चलता है, अरे यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, हमें अब पता चल रहा है, because it has not been publicized, it has not been advertised, it has not been brought to public domain properly, it has not been promoted by the, marketed by the producer properly. Earlier it used to happen, nowadays it is not so. Even before the product is launched, it is in the news, it is in the market, about the information in the market is there. कई बार लीक्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है पहले से कि फलाना फलाना जगह पे उसकी टेस्ट ड्राइव होते हुए देखी गई और उसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं, दीज आर द फीचर्स. सो व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, it is because of the market has become now customer oriented. Everybody wants to satisfy the needs and demands of the customer. Producers have this now in mind, that if the customer is satisfied, then only our growth in the market is possible, then only we can capture a huge market. So customer oriented ban gaya. Customer is the kingpin of the market, therefore all these changes are taking place. Therefore selling concept is replaced by marketing concept. Okay, the promotion company, through promotion companies aim to achieve twin objective. दो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी अचीव करना चाहती है, दैट इज नंबर वन, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएड देम टू परचेज द प्रोडक्ट. एक तो बताना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, इन्फॉर्म, एंड ऑल्सो परसुएड देम, कन्विंस देम थ्रू डिफरेंट schemes and offers and competitive prices and features that buy this product. It is the product meant for you. It is the product better than others for you. तो उसके लिए सबसे पहले है इसमें आपका एडवर्टाइजिंग. फर्स्ट टूल जो यूज करते हैं प्रमोशन के लिए इज एडवर्टाइजिंग. एंड यू ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, हाउ इट इज डन, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मीडिया विच इज यूज्ड फॉर इट, क्या इम्पैक्ट होता है उसका. समटाइम्स यू सी अ एड, लास्ट तक पता ही नहीं चलता है कि किसका एड है. एड बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे घर के अंदर का, बिल्कुल उसमें त्योहारों जैसे वो चल रहा है, कुछ ये हो रहा है, बात करते हैं तो पेंट का एड था, एड चल रहा है, आप पूरा देखते हैं, उसके बाद आप सोचते रहते 5-7-10 बार देखने में समटाइम्स यू अंडरस्टैंड कि दिस इज दिस एड. कुछ एड जो है उसमें कुछ बोलते ही नहीं,
बिल्कुल साइलेंट होगा। कुछ ऐड होंगे उसमें इतना बोलेंगे, इतना वो करेंगे, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे जो प्रोडक्ट होगा या। दिस इज हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर, पहले उनको अपनी तरफ खींचना है, देन स्लोली स्लोली एड्स में जो है बात अपनी कही जाती है। आप देखिए बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐड, मुश्किल से 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ 20 सेकंड का ऐड होता है, 25 सेकंड का ऐड होता है, बिकॉज फॉर सेकंड्स द अमाउंट चार्ज इज वेरी वेरी मच, राइट। लाखों करोड़ों रुपए जो है एक एक सेकंड के जो है ऐड के लगते हैं, बिकॉज इट इज सीन वर्ल्ड वाइड नाउअडेज, वर्ल्ड वाइड। जस्ट सी, इफ यू गिव an ad in a दिस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कितने लोग उसे देखते हैं। जब भी कोई नाटक चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है, इन बिटवीन क्या है वो पता नहीं चलता, ऐड के बीच में नाटक आ रहा है, नाटक के बीच में ऐड आ रहा है। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर एंड पीपल वॉच इट। जब बार बार देखेंगे, कई बार तो आपने देखा दे आर पीपल आर अफेक्टेड बाय इट सो मच, इतना ज्यादा उससे वो हो जाते हैं कि कन्विंस हो जाते हैं कि वो जाके फटाफट खरीद ही लेते हैं उस चीज को, because so many people are buying, because so many times this ad is being displayed, because this is done by Shahrukh Khan, this is done by this is done by that, so it must be very very good। और वो हो सकता है उसे यूज भी ना करते हो। पर्टिकुलर अमिताभ बच्चन को देखिए आप, हर चीज बेचने आ जाते हो एड में, यूज चाहे उसमें से एक ना करते हो। कभी डाबर दंत मंजन उन्होंने यूज किया होगा? वो ऐड ऐसे करेंगे जैसे कि ये सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करते हैं। कोरोना वायरस का भी तो हुई है। हाँ, कोरोना वायरस के तो ब्रांड एम्बेसडर थे। बट सो people are now smart enough to make out, but even then advertising is an impersonal form, ये अंडरलाइन कर लीजिए, it is an impersonal form of communication and one sided, it is impersonal form first and one sided, two people do not participate when advertisement is going। आप सब देखते हैं ना, देखते हैं और सुनते हैं, you cannot give your feedback exactly there when the advertisement is on, so it is a one sided form of communication and it is impersonal because there is no personal interaction or contact between the advertiser and you, only through the ad they connect with you, they tell about the product and you just see, watch, listen and perceive what is being told। उसमें आप अपना फीडबैक भी देते हैं। जो पर्सनल सेलिंग होती है उसमें पब्लिसिटी जो होती है, पर्सनल सेलिंग जो है ये आपका पर्सनल है। पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली होता है, उसमें खुद जाके सेल्समैन डोर टू डोर आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। The distinguishing feature of advertising are, number one, it is a paid form because cost of advertising has to be borne by the marketer or the sponsor, thus it is a paid form of communication। और जो वो पे करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, वो चार्ज किससे कर लेते हैं बाद में? कस्टमर से। दैट इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वाज हायर। Impersonality, there is impersonal form of communication, there is no personal touch, no interaction with the customer। then it is identified sponsor। स्पॉन्सर तो आपने देखा ही, एडवर्टीजमेंट की तुरंत बाद किसने उसे स्पॉन्सर किया सबसे पहले बताइए। कपिल शर्मा से हुआ था तो लास्ट में कितने नाम बोलते जाता, ये फलाना फलाना फलाना, एक सांस में सारे 10-15 जो है स्पॉन्सर्स के नाम। सो दे पे फॉर बीइंग talked about in the show, they pay for being advertised about in the show। फोन देता है जैसे हर उसमें एक, तो वो उस फोन का एड है कंपनी का, तो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वी विल डिस्कस ओनली दोज, उसमें देखिए अपनी बुक में, विच आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और न्यू टू यू। We will not waste time on those which are very very simple। Mass reach, understood? Mass reach, it is yeah available, means advertisement reach almost everyone nowadays
इन द कंट्री। सभी के पास आजकल जो है फोन है, सभी के पास आजकल जो है कम्युनिकेशन में कोई वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से कि बात लोगों तक पहुंच जाती है। Enhancing customer satisfaction, because it creates confidence among customers that the quality of the product, the features of the product will be as it is as shown in the ad. क्योंकि कंपनी जो है वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेंगी, अपना नाम खराब नहीं करेंगी, तो एड में जैसे दिखाते हैं वैसा ही वो प्रोडक्ट होता है नॉर्मली। देयर आर वेरी रेयर चांसेस दैट द प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स and advertised something else. So there is a lot of satisfaction amongst the customer that yes, what we have seen, what was shown in the advertisement is now we have received. Expressiveness in advertisements, they express it very clearly. कोई भी ad देखते हैं आपको सभी जानकारी मिलती है उसमें, right? And you can also get information on net. You can also get information when you purchase the product. Labeling. Economy, it is the most economical way to communicate with a large number of potential customers, because everybody can watch, everybody can see, everybody can get information about the product through this medium. Legitimacy, it involves giving a message publicly. Thus, it creates confidence amongst the customer that the information provided is true. Legitimate means legal. वो लीगल भी हो जाता है, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, उसमें अदरवाइज आपके जो है 420 का केस बनेगा that you are advertising this and that. ये आप तो उसमें बता रहे थे कि ये फलाना चीजें निकल रहा है उसमें पत्थर, इतने इतने आप इसमें बता रहे थे हेल्थ से रिलेटेड जो है चीजें सब अपोजिट निकल रहे हैं। इट कैन नॉट बी, इट शुड नॉट बी। लेजिटिमेट हो जाता है। Case can be sued on them. Case can also be sued on them. Limitations of advertising. It is less forceful. कह रहे हैं। See, you have to see both the aspects, positives and negatives. तो बोलना आपने दोनों के बारे में। जब आप पॉजिटिव के बारे में बोले तो ऐसा लगे कि बिल्कुल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है उसमें। जब आप नेगेटिव के बारे में बोले, लिमिटेशंस बोले, तो आपको ऐसे बताना है कि उसमें सब गड़बड़ी गड़बड़ है। तो ये नहीं कि सर अभी तो आप इसकी अच्छाई कर रहे थे, अब जो है फटाफट 2 मिनट में आप बदल गए, अब उसकी बुराई करने लगे। हमने सारे एस्पेक्ट्स जो है वो अपने पास होने चाहिए। क्वेश्चन तो एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो लिमिटेशंस में कह रहा है लेस फोर्सफुल, अभी कहते हैं वाइड रीच, तुरंत 2 मिनट बाद लेस फोर्सफुल। अब लेस फोर्सफुल में आप अपने अपने उसमें तर्क दीजिए। लेस फोर्सफुल, मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, many of the people do not get the meaning. Kuch ads they are in a language which is not very easily understood by the normal consumers. Sometimes they are not in good taste, so many of the people avoid watching. So you can give so many reasons for that. Lack of feedback, ये important है। Lack of feedback. Advertisements जो आप शो कर रहे हैं उसका फीडबैक क्या है, इट इज नोन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एकदम से पता नहीं चलता कि पब्लिक को क्या पसंद आया नहीं आया, whether they will go to market and buy this product or not. It takes time to get the actual feedback from the customers. क्या उनकी राय है इसके बारे में, whether they are liking it, whether they want something new in it, whether they are satisfied with the features of it or not, all these things. Inflexibility, there is no flexibility in advertisement, because एडवर्टीजमेंट एक बार बन गए तो फिर वो बन गए, उसमें फिर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है, राइट? देयर इज नो इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो बात करने के तरीके में आप बदलाव ला सकते हैं, दैट इज देयर इन द पर्सनल सेलिंग। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, सेल्समैन जो है अपनी टोन, अपनी सब चीजें बदल देता है। हिंदी में बोलना है हिंदी में बोल देगा, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोल देगा, पंजाबी है पंजाबी में बात बोलेगा। बट एडवर्टीजमेंट के साथ ये है कि दैट इज not flexible. Then low effectiveness, again the advertisement message reaches a large number of people and it is difficult to ensure that the message is heard by potential customer. This adversely affects the effectiveness of the advertisement, and also some of the people are of the opinion, जो नीचे लिखा है ना, objections to advertising. Many of the people object that it adds to the cost of the product. Advertising
adds to the cost of product and it is a burden on the customers. जितना भी एडवर्टीजमेंट में खर्चा होगा फाइनली जो है वो किससे लिया जाता है, कस्टमर से. सो इट इज अननेसेसरी बर्डन ऑन द कस्टमर. वो कह रहे हैं सीधा ही आप प्रोडक्ट को बेचिए, इट वुड बी ऑन अ वेरी वेरी लेस प्राइस. ये टेबल बना हुआ है, जस्ट लुक एट द टेबल. Arguments for advertising, arguments against advertising. It is a very very important question. It can be asked in the exam. What are the arguments in favor of advertising? Why a product should be advertised? Right? What are the benefits or what are the limitations? Argument for and against. For में कह रहे हैं it increases the cost of product, which is ultimately transferred to the customer in the form of increased price. Against advertising, advertising involves huge cost, but at the same time, it approaches large number of customers. It creates product awareness and also it persuade them. Persuade मतलब मनाते हैं किसी भी तरीके से to buy the product. जिससे क्या है? It helps to increase the demand. Demand बढ़ जाती है उससे. This increased volume of sale leads to increased production, increased profit. भाई volume of sales बढ़ेगा, production demand बढ़ेगा, demand बढ़ेगा तो आपका production बढ़ेगा, production बढ़ेगा तो उनको profit ज़्यादा होगा, profit ज़्यादा होगा, economy of the country will grow. इनका मतलब ये है क्या नहीं. Number 2, undermines social values. वो कह रहे हैं ये social values को जो है undermine करती है. कुछ एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कि अरे नॉट इन गुड टेस्ट, हाउ दे आर शोइंग लाइक दिस, सम दे मे अफेक्ट योर सोशल वैल्यूज, सम दे मे morally ethically may not be watchable. So people sometimes undermine, they say the advertisements, they undermines the social values, right? Like this ये जो fast foods and all, इसका जो इतना ज्यादा वो हो गया एकदम से, किस वजह से हो गया? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर, यू नो, जगह जगह पोस्टर लगे, एड्स में दिखा रहे हैं, खाते हुए दिखा रहे हैं, ये करते हुए दिखा रहे हैं, तो एवरीबडी. और उससे क्या हुआ? दिस वाज नॉट इन आवर कल्चर, दिस इज अ एलियन कल्चर व्हिच हैज नाउ बीन टेकन अप बाय द सोसाइटी बिकॉज नो चॉइस. दे से नो चॉइस, वी हैव टू डू इट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट. अब एवरीबडी इज डूइंग इट कहां से आ रहा है? एवरीबडी को सब जगह दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है. जब दिख रहा है वो सब जगह तो वो अपने आप बिक रहा है. एडवर्टीजमेंट का इतना ज्यादा इंपैक्ट है. समटाइम्स यू डोंट नो अबाउट समथिंग, डोंट नो अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम और प्रोडक्ट. आप देखते हैं कि अरे अरे तो मैंने वहां भी ऐड देखा. एवरीवेयर, जहां से मैं रास्ते से आ रहा हूं, एवरीवेयर आई सी बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, सभी में ये दिख रहा है. वो बढ़िया ही होगा, लेट्स ट्राई. तो वो ट्राई के नाम पे हो गया फर्स्ट टाइम. फिर हो सकता है आपको अच्छा लग जाए, एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कंफ्यूजेस द बायर्स. कितने सारे ऐड आते हैं फोन के, टीवी में. बायर बेचारा कंफ्यूज, वो अपने आप कोई डिसीजन ले नहीं पाता है. वो डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ किससे वो परसुएड होता है. कई बार तो उसकी अपनी लाइकिंग ही नहीं रहती है, खरीदने कुछ और जाता है, वहां खरीद के कुछ और ले आता है. व्हाई? बिकॉज आप देखिए जितने ज्यादा आपके सामने ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आप एक टी शर्ट खरीदने गए, अब उसने टी शर्ट आपके सामने रख दी है, आपको एक दो कलर कोई पसंद आया, लेकिन उसने आपके सामने बिछा दिए 15 कलर, डिफरेंट डिजाइन्स. ये भी सही लग रहा है वैसे, दिस ऑल्सो लुकिंग नाइस, हाफ भी ठीक है वैसे, गोल गले की भी ठीक लग रही है. एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड. You will get confused because of the choices being given to you. तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? इट कंफ्यूजेस. वो कह रहे हैं इट कंफ्यूजेस rather than making a person more informed, and it rather than helping him to buy a particular product, sometimes it confuses him. The advertisement, ये उसके अगेंस्ट में बात करेंगे. It encourages sales of inferior products also, inferior or dubious products. इंफीरियर प्रोडक्ट्स भी कई बार एडवर्टीजमेंट में जो है क्या हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट की वजह से बिक जाते हैं. कहीं पर सेल लगती है, कहीं पर जो है
सेकंड हैंड शॉप्स होती है, सेकंड शॉप्स होती हैं, और वहां पर जो है प्रोडक्ट को इतना ज्यादा हाईलाइट करके बेचा जाता है कि यू गेट द यूटिलिटी यू गेट इज नॉट वर्थ। आप जो पे करते हैं आपको बाद में लगता है कि अरे आई एम चीटेड। तो एडवर्टीजमेंट ऑल्सो एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स विच इज नॉट अ गुड साइन। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, जो कस्टमर ओरिएंटेड जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज द फॉरमोस्ट थिंग, वो क्या हो रही है, इससे अंडरमाइन हो रही है। सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट which society may not approve. Not all advertisements use unacceptable norms. However, in fact, many advertisements जो है वो एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, अवेयरनेस के लिए भी होते हैं, बट फिर भी जो 2 4 5 10 नॉट इन गुड टेस्ट होते हैं, पब्लिक जो है उसे क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है, या जो उनको जो है नहीं देखती है, एंड धीरे धीरे फिर वो अपने आप ही क्या होता है, ऑफ कर लिए जाते हैं। सो दीज आर सम फॉर एंड अगेंस्ट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, प्लीज राइट इन डिटेल प्रॉपरली कि एडवर्टीजमेंट क्यों जरूरी है, या एडवर्टीजमेंट के लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से इट इज नॉट टेकिंग अप द फुल स्विंग। और अगर कहीं पर है भी तो आपको उसमें दोनों, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर प्रॉपरली। नंबर 2 इज पर्सनल सेलिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल है, पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, द कंपनी वांट्स इट प्रोडक्ट टू बी सोल्ड एट डोर स्टेप्स, इंडिविजुअली, बात करके कस्टमर के पास जाके, और उसको जो है प्रोडक्ट के बारे में बता के, इसके लिए सेल्समैन अपॉइंट करते हैं। वो सेल्समैन जाते हैं पर्सनल टॉक्स के थ्रू और अपने आप सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, आपको उसके फीचर्स बताएंगे, और रिड्यूस्ड कॉस्ट पे होता है, राइट, सैंपल्स लेके जाते हैं वो। पर्सनल सेलिंग में वैसे तो कहते हैं कि बोलना बहुत जरूरी है, बट सुनना भी बहुत जरूरी है। सेल्समैन हैज टू लिसन ऑल्सो। कस्टमर तो कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं, सेल्समैन हैज टू लिसन टू द रिक्वायरमेंट, नीड्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वेरीज अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन? इसमें दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू बिजनेस, टू कस्टमर, टू सोसाइटी। तो ये तो बहुत सिंपल है। क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन देख लीजिए। क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। नंबर 1, क्या मतलब है फिजिकल क्वालिटीज से? प्रथम, फिजिकल क्वालिटीज मींस फिट। ही शुड बी फिट, ही शुड बी, ये नहीं कि बहुत हैंडसम होना चाहिए, बहुत बोल, ही शुड बी फिट का मतलब फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, राइट, मेंटली फिट होना चाहिए। ही शुड बी प्रेजेंटेबल, सभी बाल टेढ़े मेढ़े हो रहे, टाइम भर जा रही है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एवरीबॉडी किसी भी फील्ड में हो, जो सेल्समैन तो फिर भी और ज्यादा जरूरत है, बट किसी भी फील्ड में आप है, यू शुड बी एटलीस्ट प्रेजेंटेबल। कपड़े आपके कैसे भी हो, लेकिन जो है कि एटलीस्ट आयरन प्रॉपर होने चाहिए। आयरन नहीं है तो उसमें बहुत रिंकल नहीं होनी चाहिए। और शूज शुड बी पॉलिश्ड, यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, हेयर्स, दिस एंड दैट। इसको कहते हैं फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल अपीयरेंस। इट शुड बी अपीलिंग, राइट। दूसरे को उससे जो है किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपको अवॉइड करे। ये सेल्समैन की फर्स्ट क्वालिटी। नंबर 2 आपको पता है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। दैट इज टू से ही शुड बी स्वीट नेचर्ड, डिसिप्लिन्ड, सॉफ्ट स्पोकन, और अपनी बात समझाने वाला होना चाहिए। he should be able to persuade the customer to buy the product। तीसरा आपका टेक्निकल क्वालिटीज उसमें सारी होनी चाहिए। जिस चीज का भी वो एडवर्टीजमेंट करने जा रहा है उसके बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। कि पता चला बता रहा है, हाँ जी देखिए इसको ऐसे दबाने से ये खुलेगा, दबाया इधर खुल गया उधर, जी इसको प्लग को ऐसे लगाना है, और प्लग का पता चला कि उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये इससे जो है आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, कुछ पता नहीं चल रहा होता। मीन्स ही डज नॉट नो हिमसेल्फ अबाउट द टेक्नोलॉजी जिसको कि वो करने आया, बेचने आया। ही डज नॉट नो अबाउट द ingredients of the product. He does not know about its make how, does not know about its service, this and that.
तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ही शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड. कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ही शुड बी मास्टर एट कम्युनिकेटिंग. ही शुड बी हैविंग नोइंग मैनी लैंग्वेजेस, जो लोकल वहां पर लैंग्वेज हो जिस पर्टिकुलर एरिया और उसमें है वो. तो उसको लगता है कि भाई यहाँ पर ये लोग ज्यादा रहते हैं, इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल ज्यादा है, तो उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए. इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी जो भी और डायलेक्ट्स होती है उसकी सारी उसको पता होनी चाहिए. ऑनेस्टी, कर्टेसी, परसिस्टेंट. अपनी बात पे जो है, अपनी बात को समझाने में जिसमें जो है पूरा वो हो, एबिलिटी हो. ये शुड नॉट बी इम्पेशेंट. दो लोगों ने खरीदा, तीसरे लोग खरीद गए, तुझे तो खरीदना ही पड़ेगा है, सुबह से मेरा कुछ होने लगा. ही फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस. ही शुड बी परसिस्टेंट. ही शुड बी पेशेंट. ही शुड बी वेरी वेरी काम. अपनी बात जो है आसानी से समझा सके, ज्यादा परेशान ना हो. और ऊपर लिखा है ऑनेस्टी एंड कर्टेसी. कर्टेसी, ही शुड बी कर्टियस. सॉफ्ट स्पोकन का मतलब ये कर्टेसी. कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट. ही शुड हैव दिस कैपेसिटी टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग्स द कस्टमर, कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ क्या है, सच है. जो जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ इट इज सेम. और he should be able to persuade the customer so as to buy the product. Got it? सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें हाई फाई वो नहीं है. जनरल डे टू डे जो रूटीन में आप देखते हैं वही सारी चीजें. अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. सेल्स प्रमोशन, इसमें एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन आपसे. कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक का एक वो देंगे आपको एग्जाम्पल, पूछेंगे विच टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज रेफर्ड टू इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड नेम 2 or 3 अदर सेल्स प्रमोशन टेक्निक. उनके नाम है. सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में आप देखते हैं, बाजार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग दुकानदार अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं, और वो अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं. जानते हैं उन कुछ मेथड्स के बारे में. सबसे पहले देखिए रिबेट. ये है कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन टेक्निक. इन सब में जितना भी आप पढ़ रहे हैं इसमें प्रमोशन मिक्स में, सबका मेन मोटिव तो आपको पता चल ही गया है. प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, परसुएट करना, इंफॉर्मेशन देना उन्हें. तो सब में मेन ऑब्जेक्टिव, उनकी इंपॉर्टेंस सब में सेम है क्या क्या इसमें आ जाते हैं. टेक्निक में सबसे पहले है रिबेट. हर एक को आपको पहचानना आना चाहिए कि किसमें क्या होता है, किसमें किस तरीके से सेल बढ़ाने के लिए तरीका यूज किया गया. तो पहला तरीका इसमें रिबेट. रिबेट मींस ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट स्पेशल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री. लिखा होता ना, क्या कहते हैं, स्टॉक क्लियरेंस सेल लिखा होता है कई जगह, स्टॉक क्लियरेंस सेल. अब जो है जाड़े शुरू हो रहे, तो गर्मियों के कुछ कपड़े उनकी ऑफ सीजन जिसे कहते हैं सेल, वो लगा रखी है, और वो भी कुछ टाइम के लिए. ओनली फॉर टुडे लिखा हुआ, ओनली फॉर टुडे या ओनली अप टू दिस, उसको कहेंगे रिबेट. दैट इज ए टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, दैट इज ए टाइप ऑफ कंसेशन और रिड्यूस्ड प्राइस और स्पेशल प्राइस, ऑफर प्राइस ओनली फॉर सम टाइम. एंड स्पेशली इसके पीछे मोटिव क्या है, टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री और एक्सेस स्टॉक. समझ में आ गई बात. तो ये डिस्काउंट नहीं है, इट इज रिबेट. रिबेट, डिस्काउंट, इन सब में आपको फर्क पता होना चाहिए. नंबर 2, डिस्काउंट. डिस्काउंट मीन ऑफरिंग प्रोडक्ट एट अ प्राइस लेस देन द लिस्ट प्राइस. ये डिस्काउंट है. सब जगह आपको डिस्काउंट मिलता है. रिबेट बहुत कम जगह, जहां पर अभी रिबेट मिलेगी आपको तो इसमें मिलेगी समर के वो है कपड़ों में, राइट. फिर वैसे ही विंटर जब खत्म होने वाली होगी तो विंटर गारमेंट्स पे मिलेगी आपको, विंटर क्लोथ्स पे मिलेगी. दैट इज रिबेट. टू क्लियर, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू क्लियर द एक्सेस इन्वेंट्री और स्टॉक. Whereas discount is to increase the volume of sales
by offering products at a lower price, that is discount. Number third, refunds. Some firms may refund part of price paid by the customer against some proof of purchase. कहते ना उसके अंदर कोई कूपन निकला तो वो आपने जो है उनको दिया, उन्होंने आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वापस कर दिए. That refund is by showing the proof of the purchase or by returning some जैसे कहते हैं ना कोई टोकन होता है किसी में आपका कोई वो निकल जाता है, कूपन, टोकन होगा, कूपन होगा, कोई कार्ड होगा, वो आप वापस कीजिए एंड यू गेट सम मनी, दैट इज कॉल्ड रिफंड. देन देयर इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. या आप जब बाजार से कोई चीज खरीदते होंगे उसके साथ आपने देखा होगा, इट रेफर्स टू ऑफरिंग 2 or more products in a combination for a single price. A customer buy a combination of blood glucometer and blood pressure monitor for a price of 1500 और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलईडी टीवी विद डीवीडी प्लेयर पहले होते थे जैसे ही. वो प्रोडक्ट आपस में जो है कैसे होते सिमिलर नेचर के या सिमिलर टाइप के होते हैं. वो एक के साथ वो देते हैं कि आप जैसे कहीं पर शूज खरीद रहे हैं तो उसके साथ उन्होंने आपको जो है उसकी पॉलिसी दी, कॉम्बिनेशन, राइट. कॉम्बो पैक में कॉम्बिनेशन में आती चीजें, एक के साथ दूसरी चीज आती है जो उसी से रिलेटेड होती है, उसी से रिलेटेड भी होगी. वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऑफ चली गए आप, बिल्कुल ही प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ आपस में कॉम्बिनेशन होगा. वो एक लेते हैं, दूसरी उसके साथ आपको देते हैं, दोनों के प्राइस मिला के जो बनता है उससे भी कम लेते हैं. दैट इज ऑल्सो एट अ रिड्यूस्ड प्राइस बट इन ए कॉम्बो. टूथपेस्ट आप लेते हैं, उसके साथ ब्रश अंदर ही फ्री आता है, तो पता नहीं चलता है कि टूथपेस्ट के पैसे लिए कि ब्रश के पैसे लिए या दोनों के लिए मिला के, लेकिन आपको लगता है कि इसमें फायदा ही है. ले रहा हूं मैं टूथपेस्ट, साथ में ब्रश शायद मुझे फ्री मिल रहा है, तो आप कुछ भी समझे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बो, कंबाइंड वन. देन देयर इज क्वांटिटी गिफ्ट्स. क्वांटिटी गिफ्ट होता है ना, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, उसमें लिखा है 20% एक्स्ट्रा, तो आपने तो 500 ग्राम वाला खरीदा है, तो उसमें जो है 520 ग्राम है, मतलब आपने पैसे कितने के दिए, 500, बट द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज 550, 520, 580. थोड़ा सा उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, 25% एक्स्ट्रा. मन चाह रही है तो वो आपने देखा थोड़ी लंबी है, पैसे तो आप उसको उतने ही दे रहे 10 रुपए, पर आप देख रहे हैं ये जो थोड़ी आजकल इंक्रीज साइज पे आ रही है, तो वो जो इंक्रीज साइज है दैट इज क्वांटिटी गिफ्ट. उसमें आपको क्वांटिटी क्या दी जा रही है, ज्यादा, बट द प्राइस इज ऑफ द लेस क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल 20% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, फॉर ए 2-night हॉलीडे गेट 3rd night फ्री, लाइक दैट ऑफर, जिसमें आप प्राइस पे कर रहे हैं ऑफ लेसर क्वांटिटी और लेसर दैट अमाउंट, और जो है मिल रहा है आपको ज्यादा. Then there is instant draw and assigned gifts. Instant draws होते हैं तुरंत, या आपको जो भी उसमें लिखा होता है वो गिफ्ट मिलता है. स्क्रैच कार्ड वाले भी होते हैं आपके, उसमें लकी ड्रॉ है. एक इंपॉर्टेंट है इसमें नीचे, यूजेबल बेनिफिट्स. कंपनीज ऑफर यूजेबल बेनिफिट्स लाइक शॉप फॉर 50,000 एंड गेट ए हॉलीडे पैकेज वर्थ 8,000 फ्री. On purchase apparel for 10,000 and get a voucher of 1,000 for accessories. Usable benefits है कि आप जब कुछ परचेज करते हैं उसके साथ वो आपको जो है समथिंग और दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि क्या है उसके साथ एक तरीके से ऑफर में है, दैट इज इन ऑफर फॉर दैट. और है आपका क्या, फुल फाइनेंस, आजकल जैसे होता है आपका एट 0% इंटरेस्ट है, और डाउन पेमेंट भी आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी स्कीम है. सैम्पलिंग, मैनी मार्केटर्स ऑफर फ्री सैंपल्स टू कस्टमर्स. तो फ्री सैम्पलिंग में आप अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं, पहले लोगों को पसंद आएगा, देन दे विल डेफिनेटली बाय इट. देन देयर आर कॉन्टेस्ट्स. आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो जीतेगा उसमें उसे जो है ये मिलेगा. और कई जगह आपने देखा होगा कि आप सामान खरीदते हैं, उसके साथ वो आपको एक नंबर दे देते हैं, बाद में उसका लकी ड्रॉ निकालते हैं, राइट. ये सब क्या है, दीज ऑल आर नोन एज सेल्स प्रमोशन टेक्निक. एग्जाम में जैसे पूछेंगे बाय 2 get 1 free इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक. फिर आप बताएंगे नाउ उसका
एक नंबर आंसर मिल गया। फिर पूछेंगे राइट 4 मोर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विद एग्जांपल। फिर पूछ दिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेल प्रमोशन टेक्निक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, मेरिट्स ऑफ। समझिए क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, so it is very easy, not so difficult also. Last है आपका पब्लिक रिलेशन, we will do it another class. Public relation will be done in another class, the last class when I will start the next chapter also. Anybody want to ask anything? Another class. This is all in promotion mix. Last one, publicity, will be done tomorrow. Thank you.